Dear students, I am going to cover up the second chapter of your English course book. Overcoat is a short story written by Russian author Nikolai Gogol. He is a Russian author. That means he belongs to Russia. He is born in Russia and he writes in Russia. That is why he is known as Russian author. This is a short story written by Nikolai Gogol. This story basically deals with the contrast between upper and lower class in a society. You all know that in a society there prevails the two type of classes. That is upper class who earns more money and lower class who earns less money. So this story deals with that contrast on the society only. It tries to teach us to be optimistic in an unfavoring situation through its lead character, the hero of the story, Akaki Akakevich. Akaki Akakevich is his name. The hero, the main character of the story is this one. Through this character, we come across the story and we learn about how to be optimistic in an unfavoring situation. एक ऐसा सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक रहना जो बिल्कुल भी हमारे फेवर में ना हो. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी होना. ऑप्टिमिस्टिक. You can see here it is optimistic and optimistic being in unfavoring situation. Okay? तो आशावादी रहना मतलब कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो. This is what the story teaches us. Characters in the story. The first character, the main character of the story is Akaki Akakevich. He is a government servant, a clerk. Clerk पता है आप लोग क्या होता है? It's someone who works in an office who basically do the paper works like typing, copying, this type of work. So Akaki Akakevich is the government servant. Basically, he is a clerk. He is dedicated to his job and he is famous in his department for his hard work. अपने डिपार्टमेंट में वो बहुत ही फेमस है. He is famous for his hard work. His colleagues always try to distract him from his work by teasing him every now and then through different means, but he never reacts. इसके जो कलीग्स हैं वो जलते हैं उससे. क्यों? क्योंकि वो हर काम टाइम पे करता है, वो हर काम को बहुत ही डेडिकेशन से करता है. उसके जो कलीग्स हैं वो उससे जलते हैं और उसको हमेशा परेशान करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने काम को ठीक से ना कर पाए. बट ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ दो ही स्ट्रगल्स टू डू हिज डेली कोर्स विथ हिज मेयर्ज सैलरी. मेयर्ज मीन्स बहुत ही कम. उसकी बहुत सैलरी जो है बहुत ही कम है. इतना कम है कि वो अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी कर नहीं पाता ठीक से, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. तो you must know about this character Akaki Akakevich. Second character is Petrovich. He is the second main character of the story and he is a tailor. Third are the other officers at Akaki's workplace. Means where Akaki works, जहाँ पे Akaki काम करता है वहाँ पे ही कुछ अदर ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने बताया जो लोग परेशान करते हैं एंड ऑल. जो अदर ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जो अपर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लोअर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ऑल द पर्सन दैट आर वर्किंग इन दैट गवर्नमेंट ऑफिस वेयर अकाकी वर्क्स. तो दीज आर द थर्ड कैरेक्टर्स बट दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ द place means where the story is set in. As I have said, this Nikolai is a Russian writer. This story is also set in Russia. You can see the red part of on the map is Russia. This story is set in St. Petersburg in Russia. It's a cold place. It is a very cold place and St. Petersburg is a small place in Russia. Significance of overcoat. This is how the overcoat looks. Overcoat ऐसा दिखता है. It's a bit long from downside than a blazer that we wear. Overcoat means a long thick coat that you wear in cold weather. ठंडी के मौसम में ज़्यादातर पहनते हैं और लॉन्ग होता है और थिक होता है, बड़ा मोटा होता है. बिकॉज ऑफ जैसे कि मैंने बताया कि जो सेंट पीटर्सबर्ग द रशिया इज़ द कोल्ड प्लेस, वहाँ पे ज़्यादातर लोग हर सीज़न में इस तरह के ओवरकोट्स पहनते हैं.
Overcoat here used as a status symbol of upper class as it is worn by those who earn high salary. Overcoat here, the overcoat here is used as a status symbol for what? Upper class. Those who earn high salaries. जो बहुत ज़्यादा सैलरी कमाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उन लोग ही ओवरकोट खरीद पाते हैं और उसको पहन पाते हैं. इसी वजह से ओवरकोट को यहाँ पे एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, अपर क्लास के सिंबल की तरह. मतलब दोज हु वियर्स बिलोंग्स टू द अपर क्लास. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. कीप योर बुक विद यू. So here we are on the book. You can see I am opening the chapter, the overcoat. Keep your book with you for better explanation. Now coming to the start of the story. A government servant on a budget finds that he needs to spend some of his money on an essential item. A government servant है, we are talking about Akakiyevich only. The government servant, उसको पता चलता है, he finds that उसको अपने बजट में से, मतलब जो लिमिटेड बजट है हर महीने का, उसमें से कुछ पैसे किसी एक एसेंशियल आइटम में खर्च करने पड़ेंगे. तो दिस इज द स्टोरी बेसिकली. नाउ वी विल सी हाउ एंड हु इज द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज गोइंग टू स्पेंड हिज मनी टू एन एसेंशियल आइटम. Now the story starts in this way. In a certain department there was a certain official, not a very high one. मतलब एक certain department, एक किसी डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम नहीं करता है, वो लोअर लेवल पे काम करता है. It must be allowed, sort of stature, somewhat pock-marked, red-haired and short-sighted, with a bald forehead, wrinkled cheeks and a complexion of the kind known as sanguine. वो उसका जो हाइट है वो बहुत ही कम है. ही इज ऑफ शॉर्ट स्टेचर. ठीक है. समवॉट पोक मार्क्ड. पोक मार्क्ड मीन्स उसके चेहरे पे धब्बे हैं. रेड हेयर्ड मीन्स उसके बाल जो हैं वो लाल हैं. शॉर्ट साइटेड मीन्स उसके पास की रोशनी जो है, उसकी आंख के देखने की जो रोशनी है वो कम है, जो शॉर्ट साइटेड कहते हैं. विद अ बाल्ड फोरहेड, और उसका जो सर है वो गंजा है, उसके सर पे बाल नहीं है. रिंकल्ड चीक्स एंड अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ द काइंड नोन एज सैंग्विन. उसके चीक्स जो हैं वो रिंकल्ड हैं और उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क है. द सेंट पीटरबर्ग क्लाइमेट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. और उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है उसके स्किन का, उसकी वो किसकी वजह से है? वो सेंट पीटर्सबर्ग का जो क्लाइमेट है उसकी वजह से है. एज फॉर हिज ऑफिशियल स्टेटस ही वॉज वॉट इज कॉल्ड अ परपिचुअल टिटुलर काउंसलर. टिटुलर मीन्स नाम मात्र का, मतलब बहुत ही, मतलब उसे काउंसलर उससे सिर्फ लोग कहते हैं लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं. परपिचुअल का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, जो हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं परपिचुअल. ठीक है, तो वो हमेशा से ही ऐसा ही है. ओवर विच एज इज वेल नोन some writers make merry and cracks their jokes, obeying the praiseworthy custom of attacking those who cannot bite back. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसको बाकी जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, वो हमेशा उसके मजाक उड़ाते हैं और उसके मजाक उड़ाने में ही अपनी खुशी समझते हैं. एंड ये एक बहुत ही प्रेजवर्दी कस्टम है. प्रेजवर्दी कस्टम मतलब जो ज़्यादातर लोग उसको बढ़ावा देते हैं. ठीक है, तो प्रेजवर्दी कस्टम ऑफ अटैकिंग दोज हु कैन नॉट बाइट बैक. हम जनरली उसी के मजाक उड़ाते हैं जो हमारा रिप्लाई नहीं करता. अगर कोई रिप्लाई करेगा तो हम उसकी मजाक उड़ाना बंद कर देंगे. तो दैट इज़ व्हाट इट्स सेइंग कि ये एक बहुत ही प्रेजवर्दी कस्टम है कि हम जनरली उसी को अटैक करते हैं, मतलब उसी का मजाक उड़ाते हैं जो जनरली बाइट बैक नहीं करता है. एंड हिज नेम इज अकाकीविच. ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम अकाकीविच है, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग और जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली द फर्स्ट पैराग्राफ वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाकीविच. व्हेन एंड हाउ ही एंटर्ड द डिपार्टमेंट एंड हु अपॉइंटेड हिम नो वन कुड रिमेंबर. हिज सुपीरियर ट्रीटेड हिम इन कूलली डेस्पोटिक फैशन. डेस्पोटिक मतलब क्या होता है? जैसे कि जब कोई अपर पोजीशन में कोई इंसान है
वो अपने लोअर पोजीशन के इंसान को सप्रेस करता है, दबाता है, बिकॉज ऑफ हिज पावर। उसी को डेस्पोटिक कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सुपीरियर्स हैं उसको, वो उसको डेस्पोटिक फैशन में हमेशा ट्रीट करते हैं। सम सब चीफ वुड thrust a paper under his nose without so much of as saying copy or here is a nice interesting affair or anything else agreeable। तो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जो थोड़े से भी उससे अपर पोजीशन पे हैं, वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी काम हो वो उसके सामने रख देते हैं। यहाँ पे अंडर हिज नोज का मतलब है नाक के नीचे रखना, यहाँ पे उसके सामने रखना, मतलब कि काम उसके सामने रख के रख देना कि दिस इज द वर्क यू हैव टू डू इट, है ना। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर। एज इज कस्टमरी अमंगस्ट वेल ब्रेड ऑफिशियल्स, ज़्यादातर जो था ये भी एक कस्टम था कि जो इंसान आपका काम कर रहा है उसको परेशान करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे दो ताकि वो काम में लगा रहे। एंड ही टुक इट लुकिंग ओनली एट द पेपर एंड नॉट ऑब्जर्विंग हु हैंडेड इट टू हिम एंड वेदर ही हैड द राइट टू डू सो, सिंपली टुक इट एंड सेट अबाउट कॉपीइंग इट। लेकिन उसकी रिएक्शन कैसी होती थी इस पर, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस बात से कि उसके सामने किसने काम रखा, उसके सामने किसने पेपर रखा, ठीक है। वो बस पेपर लेता था और काम करना शुरू कर देता था, बिकॉज उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज वर्क विद डेडिकेशन। द यंग ऑफिशियल्स लाफ्ड एट एंड मेड फन ऑफ हिम एंड स्ट्रूड बीट्स ऑफ पेपर ओवर हिज हेड कॉलिंग दैम स्नो। जितने भी यंग ऑफिसर्स थे, जो मतलब कि यंग ऑफिसर्स जो उससे छोटे थे, इवन वो भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। दे यूज टू स्ट्रू पेपर्स। स्ट्रू मतलब क्या होता है, पेपर को बिखेरना। जैसे कि पेपर हम फाड़ के जब किसी के सर पे बिखेर देते हैं ना, दिस इज द सीन हियर, कि वो पेपर को फाड़ के उसके सर के ऊपर बिखेर देते थे और उसको बोलते थे कि तुम्हारे सर के ऊपर स्नो गिर रहा है। But Akakivich answered not a word, any more than if there had been no one there beside himself. लेकिन अकाकीविच का रिएक्शन क्या होता था, वो कुछ भी नहीं बोलता था, ठीक है। If even had no effect upon his work, amid all this annoyance, he never made a single mistake in a letter. इतने सारे डिस्टर्बेंस के बाद भी, इतने सारे परेशानियों के बाद भी जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, वो जनरली अनॉयड नहीं होता था। इतनी लोग उसको इतना ज़्यादा इरिटेट करते थे, उसके बाद भी वो कभी भी किसी अपने लेटर में कभी भी किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं करता था। जिस काम को वो कर रहा है उसमें कभी भी कोई मिस्टेक वो नहीं करता था। बट इफ द जोकिंग बिकेम होली अनबेरेबल एज व्हेन दे जॉग्ड हिज हैंड एंड प्रिवेंटेड हिज अटेंडिंग टू हिज वर्क, ही वुड एक्सक्लेम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मजाक उड़ाते हुए लोग उसकी हाथ को पकड़ के हिला देते थे, ठीक है। तो वो परेशान होकर बोलता था कि लीव मी अलोन, वाई डू यू इंसल्ट मी, एंड देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन द वर्ड एंड द वॉइस इन विच दे वर अटर्ड। सो तो जब कभी भी उसको कोई परेशान करता था, वो क्या बोलता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो। लेकिन उसके साउंड में भी एक स्ट्रेंजनेस होता था। वो अगर किसी को डांट भी रहा है तो इस तरह डांटता था कि जैसे कि वो सिर्फ बोल रहा है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर, दिस पैराग्राफ। इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर मैन हु लिव्ड सो एंटायरली फॉर हिज ड्यूटीज। इट इज नॉट इनफ टू से दैट अकाकी लेबर्ड विथ जील, नो, he labored with love. In his copying, he found a varied and agreeable employment. मतलब यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं इस राइटर के, मतलब कौन, निकोलाई इज द स्पीकर, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर मैन, एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जो अपने काम को इस तरीके से करता है, डेडिकेशन के साथ करता है, ठीक है। ये बोलना बहुत कम होगा। इट इज नॉट इनफ टू से दैट अकाकी लेबर्ड विथ जील। अकाकी जो है वो जो भी काम वो कर रहा है वो एंथोसियाज्म के साथ कर रहा है। जील का मतलब क्या होता है, एंथोसियाज्म, इंटरेस्ट। ये बोलना गलत होगा कि वो सिर्फ इंटरेस्ट से कर रहा है, ठीक है, बल्कि वो अपने मन से कर रहा है। ही लेबर्ड विथ लव। इन हिज कॉपीइंग ही फाउंड अ वेरिड एंड एग्रीएबल एम्प्लॉयमेंट। उसका जो कॉपीइंग करने का जो काम है उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इट इज अ अग्रीएबल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम। आउटसाइड दिस कॉपीइंग, it appeared that nothing existed for him
ठीक है, कॉपिंग करने के अलावा उसके पास उसका कोई काम ही नहीं है, ऐसा लगता है। He have no thought to his clothes. His undress uniform was not green, but a sort of rusty, muddy color. मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अपने काम में वो इतना मग्न रहता है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके ड्रेस भी गंदे होते हैं। The collar was low, so that his neck, in spite of the fact that it was not long, seemed inordinately so as it emerged from it, like the neck of those plaster kittens which wag their heads and are carried about upon the head of the scores of Russian foreigners. यहाँ पे कहने का मतलब उसके कपड़ों को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसका जो कॉलर है वो बहुत ही लो है, so that his neck, in spite of the fact that it was not long, उसका जो नेक था वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक है, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसका जो कॉलर है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। मतलब हो सकता है कि जो कपड़ा है वो बहुत पुराना हो गया हो, जैसे नहीं कपड़ा छोटा हो जाता है तो वो ठीक से फिट नहीं आता है, तो यू कैन से दिस ड्रेस वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो सीम्ड इनऑर्डिनेटली, मतलब कि वो ऑर्डिनेटेड नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कपड़ा जो है वो फिट आ रहा है उसको, ठीक है। एंड लाइक द नेक ऑफ द प्लास्टर किटन्स, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। प्लास्टर किटन का मतलब आपने समवट कभी देखा होगा, एक खिलौना जो कि मिट्टी का बना रहता है, लेकिन उसका जो डॉगी स्पेशली जो समटाइम्स वी कीप इन आवर कार्स, जो अपने सर लाता रहता है, ठीक है, जब कभी भी उसको छुओ तो उसका सर जो है हिलता रहता है, उसको प्लास्टर किटन कहते हैं। एंड आर कैरिड अबाउट अपॉन द हेड ऑफ द स्कोर्स ऑफ रशियन फॉरेनर्स। On reaching home, he sat down at once at the table, supped his cabbage soup up quickly. He rose from the table and copied papers which he had brought home. ठीक है, तो जब वो घर पहुंचता है तब वो क्या करता है, टेबल पे बैठता है, अपना कैबेज सूप पीता है और फिर से उठता है और फिर से वो काम, अपनी कॉपी करने का जो काम है वो करना शुरू कर देता है, जो कि वो ऑफिस से घर ले आया है। इफ़ देयर हैपन टू बी नन, अगर उसके पास कोई काम नहीं भी होता है तो ही टुक कॉपीज फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए कॉपीज ले आता है और करता है जस्ट फॉर हिज ओन ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है वो। स्पेशली इफ द डॉक्यूमेंट वॉज नोट वर्दी नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्टाइल बट ऑफ इट्स बीइंग एड्रेस्ड टू सम डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। ठीक है, तो ज़्यादातर वो कॉपी ही करता रहता है, चाहे स्पेस अगर उस पर कोई काम नहीं होता है तो वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी काम कहीं से भी उठाता है, कोई डॉक्यूमेंट उठा लेता है, कोई कुछ भी उठा लेता है जो उसको लगे कि नोट वर्दी है, मतलब थोड़ा सा फ़ायदे का है, उसको उठाकर वो कॉपिंग करना शुरू कर देता है। हैविंग रिटर्न टू हिज हार्ट्स कंटेंट ही ले डाउन टू स्लीप स्माइलिंग एट द थॉट ऑफ दिस कमिंग डे ऑफ वॉट गॉड माइट सेंड हिम टू कॉपी ऑन द मोरो। मोरो का मतलब होता है कल, ठीक है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो जब उसके पास अपना जो भी वो फील कर रहा है, हार्ट कंटेंट मतलब कि जो भी वो फील कर रहा है अपने मन में, उसको लिखने के बाद में उसको फिर वो सो जाता है और फिर वो सोचता रहता है हंसते हुए कि कल भगवान मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, द गॉड विल माइट ब्रिंग टू मी फॉर कॉपीइंग, जो कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो उसके लाइफ में ओवरऑल सिर्फ वही है और वो कुछ सोचता ही नहीं है इसके अलावा। देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग अ पावरफुल फो ऑफ ऑल हु रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 400 रबल्स ऑफ ईयर और देयर अबाउट्स। ऐसे लोग जो कि 400 रबल्स मतलब होता है यहाँ पे करेंसी, जो कमाते हैं वहाँ पैसा, जो जिस पैसे को बोलते हैं यहाँ पे, जो 400 रबल्स से कम कमाते हैं, जिनकी सैलरी 400 रबल्स से कम होती है, और उन लोगों के लिए उन लोगों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, फो का मतलब होता है दुश्मन, वो होता है नॉर्दर्न कोल्ड। जो नॉर्थ कंट्रीज जो कोल्ड होती हैं, जो ठंडी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इवन टिल -67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतने नीचे तक जा सकता है। तो ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, नॉर्दर्न कोल्ड, ठीक है। एट एन ऑल्दो इट इज सेड टू बी वेरी हेल्दी, ठीक है, जबकि लोग बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। एट एन आवर व्हेन द फोरहेड्स ऑफ even those who occupy an exalted position aches with the cold and tears starts to their eyes, the poor titular councillor are sometimes quite unprotected, ठीक है। तो जब ऐसा ठंडी बढ़ती है कि लोगों को ठंडी की वजह से सर दर्द हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, इवन कुछ लोगों के आंख से आंसू आने लगता है, तब
इस पुअर टिटुलर काउंसलर मतलब कि अकाकी के लिए, अकाकी विच के लिए ये जो समय होता है ये बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड होता है. Their only salvation lies in traversing as quickly as possible in their thin little overcoat 5 or 6 street and then warming their feet in the porter's room and so thawing all the talents and qualifications for official services which had become frozen on the way. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब वो रास्ते में जाते रहते थे तो रास्ते में इतनी ठंड पड़ती थी कि उनके जो पैर हैं वो जम जाते थे, उनका पूरा शरीर ठंड की वजह से जम जाया करता था. तो उनके पास बचाव का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो जल्दी से जल्दी 6 स्ट्रीट जो 5 और 6 स्ट्रीट है उसको क्रॉस करें और वो पॉटर्स के रूम में जाएं जहाँ पे वो अपनी फीट को फिर वापस गर्म कर सकें. ठीक है, तो एंड सो थॉलिंग ऑल द टैलेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिशियल सर्विसेज एंड हैड बिकम फ्रोजन ऑन द वे. तो जो रास्ते में जो भी उनके टैलेंट्स थे, इवन तो उनके टैलेंट्स ऑल्सो वे फ्रोजन, उनके जो टैलेंट्स थे, उनके जो क्वालिफिकेशंस थे वो भी फ्रोज हो गए थे. कहने का मतलब ठंड इतनी थी कि वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है. दे वर ऑल फ्रीज्ड. लेकिन जब वो रास्ते में जल्दी से जल्दी उस प्लेस को क्रॉस करके जो 5 और 6 फीट स्ट्रीट है तो क्रॉस करके जब पॉटर्स के यहाँ जाते थे और अपनी फीट को गर्म करते थे तब उनको वापस से रिवाइव्ड होते थे और वो वापस काम पर जाते थे. तो ये इसका मतलब है बेसिकली इस पैराग्राफ का. You must know that Akaki Akakevich overcoat served as an object of ridicule to the officials. तो आपको पता होना चाहिए कि अकाकी अकाकेविच का जो ओवरकोट है वो जो ऑफिशियल्स हैं, जो अदर ऑफिशियल्स हैं उनके वर्क प्लेस में, उनके लिए उनका ओवरकोट एक रिडिक्यूल मतलब कि एक अपमान की तरह है. रिडिक्यूल. ठीक है, दे इवन रिफ्यूज्ड इट द नॉवेल नेम ऑफ ओवरकोट एंड कॉल्ड इट अ ड्रेसिंग जैकेट. इवन उसको ओवरकोट बोलने से भी मना कर दिया उन लोगों ने. उन लोगों ने बोला कि ये एक ड्रेसिंग जैकेट है ना कि ओवरकोट है. क्यों? क्योंकि ओवरकोट जो है वो हायर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक सिंबल है हायर क्लास के लिए. तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो जैकेट जो ओवरकोट अकाकी अकाकेविच ने पहना हुआ है वो एक ओवरकोट है ही नहीं, वो क्या है, एक ड्रेसिंग जैकेट है. दैट्स जस्ट अ ड्रेसिंग जैकेट. सीइंग हाउ द मैटर स्टूड, Akaki Akakevich decided that it would be necessary to take the overcoat to Petrovich the tailor who lived somewhere on the 4th floor up a dark staircase. मतलब कि जब उसने सिचुएशन को देखा अपने ऑफिस में तब उसको महसूस हुआ कि उसको अपने ओवरकोट को पेट्रोविच को पास ले जाना पड़ेगा. पेट्रोविच क्या है, एक टेलर है, इसके पास ले जाके वो अपने ओवरकोट को वापस से रिपेयर कराएगा ताकि वो इस जगह पे लोग उसकी मजाक ना उड़ाएं. So he decided to go to Petrovich, जो कहाँ पे रहता है, एक जगह रहता है जो कि 4th फ्लोर में है डार्क स्टेयर केस के, जहाँ मतलब अंधेरा रहता है. दैट इज द प्लेस वेयर द पुअर पीपल और द लोअर क्लास लिव्स. ठीक है, ऐसे प्लेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे जहाँ पे लाइट भी नहीं है इवन. एंड हु इन स्पाइट ऑफ हिज हैविंग बट वन आइज एंड poke marks all over his face, busied himself with considerable success in repairing the trousers and coats of officials and others. This is to say, when he was sober and not nursing some other scheme in his head. So, generally, जो पेट्रोविच है, पेट्रोविच के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि पेट्रोविच की जो एक आंख है, इन स्पाइट ऑफ हिज हैविंग बट वन आइज, मतलब कि उसके पास आंख तो है बट उसके पास सिर्फ एक ही आंख है, दूसरा आंख जो है उसका ख़राब है. उसके चेहरे पे भी पोक मार्क्स हैं. पोक मार्क्स में हमने बताया था जैसे मार्क्स ऑफ एक्नेस और जो फुंसी होती है ना हमारे चेहरे पे हो जाती है, उसके जो मार्क्स रहते हैं वो रह जाते हैं, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे पोक मार्क्स. तो उस तरह के जो मार्क्स हैं उसके फेस में हर जगह हैं. एंड ही इज़ बिजी himself with considerable success in repairing the trousers and coats of officials. Officials ज़्यादातर जितने भी officials हैं वहाँ पे उन सबके trousers और coats यही रिपेयर करता है. That is to say, when he was sober and not nursing some other scheme in his head. अगर उसके पास कोई और काम नहीं है तो ज़्यादातर वो यही काम करता है. यहाँ पे इस कहने का मतलब है. No, it is impossible to mend it. It is a wretched garment. You must have a new overcoat, said the tailor. Means here, what happens? Akaki Akakevich is with Petrovich, the tailor, and the tailor is saying this line.
नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंड इट, ये बनाना इसको इम्पॉसिबल है। ये एक रेज्ड गारमेंट है, मतलब कि जो बहुत ही ख़राब हो जाता है, जिसका जो इधर उधर से फटा हुआ है एंड ऑल, कि इस तरह इतना ज़्यादा ये रेज्ड है कि इसको बनाना मुश्किल है, तुम नया ओवरकोट ही खरीद लो, इससे अच्छा है। एट द वर्ड न्यू ऑल ग्रू डार्क बिफोर Akakevich's eyes and everything in the room began to whirl around. A new one, said he, as if still in a dream. Why I have no money for that? Then he says कि जब उसने सुना एक नया वर्ड, न्यू वर्ड जब उसने सुना, तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसको समझ में नहीं आया कि उसकी दुनिया जो है इधर उधर घूमने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब उसने बोला, क्या एक नया? क्यों? मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। दिस इज वॉट Akakevich सेज। यस, अ न्यू वन, सेड Petrovich विथ बार्बरस कंपोजर। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूड वे में वो बोल रहा है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें नया ही खरीदना पड़ेगा, सेड Petrovich। वेल, इफ इट केम टू अ न्यू वन, हाउ मच वुड इट कॉस्ट? अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि Akakevich जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो यहाँ पे भी वो साइन आपको दिखेगा कि हाँ, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। तो हियर इट सेज, वेल इफ़ इट कम विद टू अ न्यू, अगर एक नया खरीदने की बात आ ही जाती है, तो हाउ मच इट वुड कॉस्ट, ठीक है, कितना कॉस्ट, मतलब कितने खर्च आएंगे उसके। वेल, यू वुड हैव टू ले आउट 150 मोर और मोर, उनको 150 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, रबल्स ऑब्वियसली, said Petrovich and pursed up his lips significantly, और उसने अपने लिप्स बंद कर लिए, मतलब अब कुछ नहीं बोला उसने। 150 rubles and overcoat, shrieked poor Akakevich, perhaps for the first time in his life, for his voice had always been distinguished for softness। ठीक है, तो पहली बार वो इतना चिल्लाकर मतलब कि बोला होगा, shriek मतलब चिल्लाना होता है, कि 150 rubles फॉर एन ओवरकोट, एक ओवरकोट के लिए इतना पैसा। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि Akakevich ने चिल्ला कर ये बोला होगा, बिकॉज वो जाना जाता है इस चीज़ के लिए, अपने सॉफ्टनेस के लिए, अपने कामनेस के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, डिस्टिंग्विश्ड फॉर सॉफ्टनेस का मतलब यही है कि वो अपने शांत रहने के लिए जाना जाता है। यस, सेड Petrovich, प्लीज डू रिपेयर इट समहाउ so that it will serve a little longer, said Akakevich। ठीक है, तो उसने अभी भी Petrovich को बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा रिपेयर कर दो, काश अगर ये रिपेयर हो जाए तो कुछ समय और मैं इसको पहन पाऊंगा। No, it would only be a waste of time and money, said Petrovich, and Akakevich went away after these words, utterly discouraged। तब वो बोलता है, नो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये सिर्फ और पैसे और समय का वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो Akakevich वेंट अवे, Akakevich जो है वहाँ से चला जाता है, ये दुखी होकर, डिस्करेज्ड, ही इज डिस्करेज्ड। Akakevich was still for mending it, but Petrovich would not hear of it। Akakevich अभी भी चाहता था कि उसकी जो पुरानी वाली जो ओवरकोट है वही बना दे Petrovich, लेकिन Petrovich इस बारे में सुनने को तैयार ही नहीं था। एंड सेड, आई शैल सर्टेनली हैव टू मेक यू अ न्यू वन, एंड यू मे डिपेंड अपॉन इट दैट आई शैल डू माई बेस्ट। तो Petrovich उसके बाद बोलता है कि ठीक है, एक काम करता हूँ, तुमको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नया बनाना तो पड़ेगा, पुराने को तो मेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ख़राब है। So you may depend upon it that I shall do my best। So तुमको मुझ पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए एक नया ओवरकोट बना दूंगा। It may even be as the fashion goes that the collar can be fastened by the silver hook under a flap। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जैसा फैशन है उसके जैसा तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। he is somewhere trying to help him। ठीक है, then Akakevich saw that it was impossible to get along without a new overcoat, and his spirit sank utterly। Then Akakevich जो है उसको impossible लगने लगा कि कब मेरे को फिर से नया ओवरकोट शायद नहीं मिलेगा, और उसका जो पूरा जो स्पिरिट है, स्पिरिट मीन्स उसकी जो अंतरात्मा है, वो पूरी तरह से दुखी हो गई, sank utterly।
But although he knew the Petrovich would undertake to make a clock for 80 rubles, still where was he to get the 80 rubles from? तो अब बोल रहा है कि बट ऑल्दो ही न्यू द पेट्रोविच वुड अंडरटेक, मतलब पेट्रोविच उसका काम कर देगा और वो बहुत कम में कर देगा, दैट इज 80 रबल्स में कर देगा, लेकिन 80 रबल्स भी कहाँ से आएंगे ये सोच रहा है वो। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में वो बोला था कि नया खरीदना पड़ेगा और उसके लिए आपको 150 रबल्स लगेंगे, लेकिन फिर वो बोला कि नहीं ठीक है मैं आपको बना दूंगा, और वो बोल रहा है कि अब 80 रबल्स लगेंगे, मतलब काफ़ी कम हो गए, ऑलमोस्ट 70 रबल्स कम हो गए। बट फिर भी वो सोच रहा है कि 80 रबल्स भी कहाँ से आएंगे। ही माइट पॉसिबली मैनेज हाफ, मतलब हाफ तो वो मैनेज कर सकता है, येस हाफ माइट बी प्रोक्योर्ड, बट वेयर वॉज द अदर हाफ टू कम फ्रॉम। देन वो बोल रहा है कि बाकी का जो हाफ है वो कहाँ से आएगा। Akaki Akakevich thought and decided that it would be necessary to curtail his ordinary expenses for the space of 1 year at least, to dispense with tea in the evening, to burn no candles, and if there was anything which he must do, to go into his landlady's room and work by her light. Then Akaki Akakevich is thinking, he thinks, and then he decides that he should curtail his ordinary expenses, मतलब उसको अपने ordinary expenses को कुछ कम करना पड़ेगा, जैसे कि शाम की टी उसको अवॉइड करनी पड़ेगी, कैंडल्स उसको जलाने बंद करने पड़ेंगे, और कभी अगर उसको लाइट की काम पड़ेगी भी तो वो अपने लैंड लेडी के रूम पे जाके अपने उस काम को कर लेगा, और ऐसा उसको 1 साल तक करना पड़ेगा, तब जाकर वो हो सकता है कि 40 रबल्स, जो बाकी के 40 रबल्स हैं, वो किसी तरह से मैनेज कर ले, जमा कर ले। When he went into the street, he must walk as lightly as he could and as cautiously upon the stones, almost upon tiptoe, in order not to wear his heels down in too short a time. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि वो स्ट्रीट पर जब चलेगा तो उसको बहुत ही कॉशियसली चलना पड़ेगा, लाइटली चलना पड़ेगा, ताकि वो अपने शूज़ को ख़राब ना कर दे। अगर उसके शूज़ जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो उसको बनाने पड़ेंगे, तो उससे खर्च होगा, तो वो उस खर्च को भी अवॉइड करना चाहता है। ही मस्ट गिव द लॉन्ड्रेस एज लिटिल टू वॉश एज पॉसिबल इन ऑर्डर नॉट टू वियर आउट, मतलब वो जो कपड़े धोने के लिए जब देता है वो, उसके लिए भी वो सोच रहा है कि मुझे कपड़ा कम से कम धोने के लिए देना चाहिए, ताकि कपड़े जो हैं जितनी ज़्यादा बार धुलते हैं उतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो जितनी कम मैं कपड़े को धोऊंगा उतना कम ख़राब होगा, तो मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो इस तरीके से पैसे उसके बच जाएंगे। His clothes he must take them off as soon as he got home and wear only his cotton dressing gown, which had been long and carefully saved. उसके जो क्लोथ्स हैं वो बोलता है कि जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा तुरंत मैं जो अपने कपड़े हैं उसको निकाल कर बाहर रख दूंगा, और मैं जो कॉटन क्लोथ्स हैं जो घर पे जो नॉर्मली पहनते हैं उसको मैं पहनूंगा, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि जो बाहर जाने वाले जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएं। At least once every month he went to Petrovich to talk about the overcoat, where it would be best to buy the clothes and what color it should be and what price. तो जनरली वो हर महीने कोशिश करता था कि वो पेट्रोविच से टच में रहे, पेट्रोविच से बात करता रहे, ताकि वो पता लगा सके कि जो ओवरकोट के लिए जो कपड़े यूज़ करने हैं, जो कलर यूज़ करना है और प्राइस जो होगा वो कहाँ से वो खरीदे, कैसा कलर चूज़ करे और प्राइस क्या होना चाहिए। Another 2 or 3 months of partial fasting and Akaki Akakevich had actually saved up nearly 80 rubles. The very first day he set off in company with Petrovich to the shop and they bought some very good clothes. ठीक है, तो जैसे ही 2 से 3 महीने बीत गए उसके पार्शियल फास्टिंग और उसने जो भी सोचा था वो सब कुछ करने के बाद में अकाकी अकाकेविच के पास में करीब 80 रबल्स पैसे जमा हो गए। जैसे ही उसके पास पैसे जमा हो गए वो सबसे पहले दिन एक कंपनी में गया, इसके साथ पेट्रोविच के साथ में कपड़े खरीदने के लिए, ताकि वो सबसे अच्छे कपड़े खरीद सके कोट बनाने के लिए। पेट्रोविच वर्कड एट द ओवरकोट फॉर होल 2 weeks फॉर देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ क्विल्टिंग मीन्स सिलना है यहाँ पे, कि वो जो कोट बनाना है वो बहुत ज़्यादा टफ कॉम्प्लेक्स काम है, उसको आसानी से नहीं सिल सकते, सो इसलिए उसको बहुत टाइम लग रहा है। ही टेक्स 2 whole weeks टू मेक इट, अदरवाइज इट वुड हैव बीन फिनिश्ड सूनर। अगर
इतना ज़्यादा कुछ खास कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता तो वो अभी तक सिल दिया होता, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसको अभी 2 हफ्ते लगे। ही चार्ज 12 rubles फॉर द जॉब एंड इट वुड नॉट पॉसिबली हैव बीन डन फॉर लेस। 12 rubles में उसने उसका काम कर दिया, बाकी जो कपड़े में जो खर्च हुए वो, और इससे ज़्यादा वो कम चार्ज नहीं कर सकता था, मतलब जितना ज़्यादा वो कम हो सका उतना ज़्यादा कम वो चार्ज किया। इट वॉज ऑल स्यूड विथ सिल्क इन स्मॉल double seams and Petrovich went over each seam afterward with his over teeth stamping his various patterns. It is difficult to say precisely on what day, but probably the most glorious one in Akaki Akakiyevich's life, when Petrovich at length brought home the overcoat. मतलब वो दिन उसके लिए बहुत बड़ी दिन थी, जिस दिन पेट्रोविच उसके लिए उसका जो ओवरकोट है वो सिलकर उसके पास उसके घर ले आया। He brought it in the morning before the hour when it was necessary to start for the department. मतलब वो जिस सुबह सुबह जब वो जाने वाला था डिपार्टमेंट के लिए, तभी उसी वक्त वो सुबह मॉर्निंग में वो ड्रेस को लेकर आया। Never did an overcoat arrive so exactly in the nick of time. इससे पहले कभी भी एक ओवरकोट उसके लाइफ में, मतलब इस तरह से एक ओवरकोट उसके लाइफ में इस एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास आया हो। ठीक है, निक ऑफ टाइम का मतलब होता है समय पे, बिल्कुल समय पे। फॉर द सीवियर कोल्ड हैड सेट इन एंड इट सीम्ड टू थ्रेटन टू इंक्रीज। जो कोल्ड था, जो ठंडी की मौसम थी, वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस थे और वो बढ़ चुके थे ऑलरेडी। पेट्रोविच बॉट द ओवरकोट हिमसेल्फ एज बीफिट अ गुड टेलर। पेट्रोविच ने उसके कोट को बिल्कुल वैसे लाया जैसे एक अच्छे टेलर को करना चाहिए था। उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था, काउंटेनेंस मीन्स फेस। ऑन हिज फेस देयर वाज अ एक्सप्रेशन, सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन सच एज अकाकी अकाकीविच हैड नेवर बिहेव्ड देयर। ठीक है, जैसे कि अकाकी अकाकीविच कभी भी उतना खुश ना हुआ हो। ही सीम्ड फुली सेंसिबल दैट ही हैड डन नो स्मॉल डीड एंड क्रॉस्ड अ गल्फ सेपरेटिंग टेलर who only put in lining and execute repairs and from those who make new things. मतलब उस टेलर ने, पेट्रोविच ने अपने सारे लिमिटेशंस आज क्रॉस किए थे। उसने कुछ अलग किया था, कुछ नया किया था। ठीक है, सो वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था खुद के लिए। टेकिंग आउट द ओवरकोट ही गेज्ड प्राउडली एट इट, holding it up with both hands and flung it skillfully over the shoulder of Akaki Akakievich. या उसने एक ओवरकोट को बाहर निकाला और उसके शोल्डर के पास में रखा और उसको दिखाया कि this is what he has made for him. Then he pulled it and fitted it down behind with his hand and he draped it around Akaki Akakievich without buttoning it. फिर उसने Akaki Akakievich को उस कोट को पहना दिया पेट्रोविच ने। अकाकी अकाकीविच लाइक एन एक्सपीरियंस्ड मैन विज्ड टू ट्राई द स्लीव्स। उसने अपनी स्लीव्स को ट्राई किया, देखा कैसा है वो, फिटिंग कैसी है उसकी। पेट्रोविच हेल्प्ड हिम ऑन विद देम एंड इट टर्न्ड आउट दैट द स्लीव्स वर सेटिस्फैक्टरी आल्सो। पेट्रोविच ने सब कुछ चेक किया, उसने देखा कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ फिट है। इन शॉर्ट द ओवरकोट अपीयर टू बी परफेक्ट एंड मोस्ट सीजनेबल। अपीयर कोट सब परफेक्ट दिख रहा था। He paid him and thanked him. उसने उसको पे किया, दैट मीन्स अकाकी पेड हिम एंड थैंक्ड हिम, और उसके बाद अपने कोट को पहन के अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। पेट्रोविच फॉलोड हिम, पेट्रोविच ने उसको फॉलो किया और कुछ समय के बाद उसको रुक कर देखा उसके ऊपर उसके कोट को कि हाउ इट इज़ लुकिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, दूरी से, और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते चला गया। एंड इमर्ज अगेन इन टू द स्ट्रीट बियॉन्ड टू गेज वंस मोर अपॉन द ओवर कोट फ्रॉम अनदर पॉइंट, नेमली डायरेक्टली इन फ्रंट। और फिर वो वापस से कहीं से किसी शॉर्टकट रास्ते से उसके आगे पहुंच गया और देखा कि उसका जो कोट है वो आगे से कैसा दिखता है। दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। लेसन ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एनी अनफेवरेबल सिचुएशन, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड सेकेंड, नो द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए, बिकॉज there are many who are struggling for this money only. So this is the lesson of the story.